in periodic potential. And what is this? Now Kalpana came. Chalo, chodo. Let's move. So we were talking about this wave equation for electron in periodic potential. What was the contribution of the Bloch and Bloch theorem? We have seen the Bloch theorem in detail, and then try to establish the connection between Fourier components of this UG, means corresponding to the periodic potential, and Fourier components corresponding to the Born-von Karman boundary conditions applied on the wave function. So these are Fourier coefficients which relates to the wave function and its periodicity over the length L of the crystal, which can be very large typically. You can see this L. Okay. So this slide or this diagram actually relates the two. This is very important diagram. I am also putting the caption from Kittle's book here for you. So basically, if you try to look, let us try to understand the physical meaning of this diagram. As we had seen earlier, suppose these are the atoms which are arranged in one-dimensional crystal, and suppose they are separated by a distance a. And I have drawn just a few to go with this diagram. Let us assume that we have a crystal which contains 20 primitive cells. So we have 20 such primitive cells. So means the length of the crystal, what we can say L. So L is equal to 20 times A. Okay. Now, if I try to see the periodic potential for this, or the periodicity of the potential for this, that is A, means atoms are repeating after a distance A. Therefore, the potential which electron will feel because of atoms will also be having a periodicity A. This means if I try to represent the Fourier components or Fourier space for this particular situation, that will be like there will be one term at 0, 0, 0. Then other one is at 2 pi by A. Then there will be at 4 pi by A. Maybe minus 2 pi by A, minus 4 pi by A, and so on. Correct? Now we are saying that wave function is also periodic via means of or via virtue of what you call the Born-von Karman boundary conditions. Okay, means we are trying to ignore the surface effects. Then, how will the Fourier coefficients of the periodicity corresponding to wave function will be placed in this same reciprocal space? So this diagram is representing the Fourier space corresponding to potential, periodicity of potential, as well as Fourier space corresponding to wave function, periodicity of the wave function. So they will be separated by, this is what he is saying, each will be separated by this 2 pi n by L, because in case of wave function, the periodicity is L. So taking a case of 20 unit cells, so this means from 0 to 2 pi by A, there will be 20 tiny points in between, which will be representing the components corresponding to the wave function Ck.
These components we are talking about. C case. Sorry. Yeah, we are talking about these components. So means in reciprocal space. So here in this diagram, we are choosing one, suppose some reference point, say k naught. There will be another one at say k naught plus 2 pi by a in next Brillouin zone, then plus 4 pi by a, right? Minus 2 pi by a, then there will be someone here, maybe somewhere at minus 4 pi by a, and so on. And there will be some points which would refer to the Fourier components of the wave function in between, and they will be closely spaced. I can choose even this way. This is 0. Let us say this is 0, some reference. Then this will be say 10 and minus 10. So overall length is 20 only. Overall length आपका 20 है. It is like we are trying to draw here beginner seed cell. Means k naught है minus half और plus half के बीच में. Beginner seed cell पता ही है आपको, है ना? It's what kind of thing they have done. Minus pi by a plus pi by a. दो के बीच में हम कर रहे हैं इस तरह से. ठीक है? So that's what we are trying to represent here. अभी आप पहले इसको पहले इसको डायग्रामेटिकली समझें. फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे इसके. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो हियर. मतलब ये रेसिप्रोकल स्पेस ब्रिलियन जोन ही अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं 1D लैटिस के लिए 0 पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए. अब तो हम इतनी बारी बना लिए कि आपको ब्रिलियन जोन दिमाग में छप जानी चाहिए ना. So if we have 20 unit cell long crystal, तो उस केस में CK कितने आएंगे? Fourier coefficients corresponding to wave function, they will be 20 in number in first Brillouin zone. First Brillouin zone में 20 होंगे and they will be closely spaced. Practically, for a real crystal, 20 unit cell is very small, है ना? 20 unit cells crystals तो nano crystals हो जाएंगे. Here we are talking of bulk crystals in general. अभी तक हम bulk crystals की nano physics की बात, nano science की बात नहीं कर रहे हैं, nano materials की बात नहीं कर रहे हैं. We are wanting to ignore the surface effects. Bulk materials की बात करना चाह रहे हैं अभी हम. So in that case, typically n, the number of unit cells is very very large, of the order of 10 raised to the power 23, है ना? तो ये जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन में से प्लस पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए के बीच में, दे विल बी वेरी वेरी लार्ज, सॉर्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस, प्रैक्टिकली कॉन्टिन्यूअस होंगे, बट कॉन्टिन्यूअस है भी नहीं एग्जैक्टली, है ना? पूरी तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे. That's why we call these as quasi-continuous set of points. ये जो आपके points हैं छोटे छोटे. अब इन points का physical meaning क्या है? Each point is representing what? यहां चलते हैं, देखो पिछली स्लाइड पे. हर एक पॉइंट क्या बता रहा है आपको? That refers to a particular value of k, है ना? एक particular k means a particular component corresponding to the wave function. Once you fix a particular k, you are fixing a particular orbital, because k is relating to the quantum number for the electron in a solid, isn't it? Valence electrons का, जो कि conduction electrons बन जाएंगे, उनका ये quantum number है k. तो मीन्स k की एक पर्टिकुलर वैल्यू एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है. तो इसकी जो हम बात करते हैं E इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m, ये स्टेट्स तो कॉन्टिन्यूअस हैं. k इज कॉन्टिन्यूअस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के केस में.
K is continuous, but in real crystals this is quasi continuous. ठीक है, means almost close to be continuous, but it is not exactly continuous. Means even if you have to say parabola E is equal to h cross square, even suppose कि वो parabolic ही रहता है, but energy states एक यहां पे है मान लो 0 0 0 पे, अगली वाली कहीं यहां होगी, नेक्स्ट यहां 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 यहां. दिस इज हाउ दैट इज गोइंग टू लुक लाइक. ये आपकी स्टेट्स होंगी इलेक्ट्रॉन के लिए. कहां जैसे कहीं प्लस पाई बाई ए होगा, यहां जैसे कहीं माइनस पाई बाई ए होगा. तो एट दिस मेनी स्टेट्स. और कितनी होंगी प्रैक्टिकली? जितनी यूनिट सेल्स हैं हर एक बैंड में उतनी स्टेट्स होंगी आपके पास. ठीक है, अब इसका फिजिकल फायदा क्या है, मतलब क्या है? काफी चीजें अब धीरे धीरे हमें क्लियर होंगी. इज दिस पार्ट क्लियर, क्वाजी कॉन्टिन्यूस वाला? या इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछो. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ये 20 यूनिट सेल थिक के लिए इसने यहां पे इलिस्ट्रेट करा है. 20 यूनिट सेल लॉन्ग क्रिस्टल है मान लीजिए. ठीक है, तो वेरी गुड. अब अगर हम, अच्छा पहले मैं इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ही बता देता हूं आपको. अब एनर्जी अगर मैंने लिखनी है, मान लीजिए टोटल एनर्जी ऑफ अ मटेरियल, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है हमारे सिस्टम में, विच इज प्रैक्टिकली द केस. तो मेरे पास कुछ तो कोर स्टेट्स होंगी, कोर इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ वैलेंस स्टेट्स होंगी. कोर स्टेट्स का के साथ वेरिएशन निग्लिजिबल होता है. मींस E वर्सेस K वेरिएशन फॉर कोर स्टेट्स इज निग्लिजिबल. तो K स्पेस में ही अगर हम लिखते हैं ना E वर्सेस K, ये K है मान लीजिए, ये E है, तो कोर स्टेट्स विल बी लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस ओनली, दे डोंट डिस्पर्स विद K. पर जैसे ही आप वैलेंस स्टेट्स की तरफ आते हैं, दे स्टार्ट्स डिस्पर्सिंग विद K. फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से ऐसा कोई डिस्पर्शन हो जाएगा उनका. ठीक है, तो जब हम टोटल एनर्जी लिखते हैं, टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ एनर्जीज फ्रॉम द कोर स्टेट्स. तो कोर स्टेट्स है तो E1 में सपोज N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से हम बनाते हैं डायग्राम. मान लीजिए ये है एनर्जी, ये K है कुछ, तो कोर स्टेट्स मान लीजिए ये E1 है, कोई E2 है जिसमें N1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें N2 इलेक्ट्रॉन है, और K के साथ डिस्पर्शन इनका है नहीं ज्यादा. उसके बाद फर्दर कोई एक स्टेट आती है, ये बैलेंस बैंड आ गया, ये आपका कंडक्शन बैंड आ गया. ठीक है, ऐसे जस्ट मैं एक लिख रहा हूं अभी स्कीमेटिक के लिए, जस्ट टू ट्राई टू गेट ए क्विक आइडिया. सो टोटल एनर्जी कितनी होगी? N1 इलेक्ट्रॉन्स E1 स्टेट में है प्लस N2 इलेक्ट्रॉन्स E2 स्टेट में है. के डिस्पर्शन इनका था नहीं तो उसका लेने की जरूरत नहीं है. पर जो बाहर वाले जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए आप सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. सपोज N इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन में और इनकी एनर्जी क्या लेंगे आप? दैट इज नॉट फिक्स्ड, सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन K, राइट? सो इस केस में हम क्या करेंगे? वी शैल बी, कोर वाली एनर्जी तो छोड़ देते हैं, इस केस में टोटल एनर्जी विल बी, टोटल एनर्जी बिकॉज ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस मींस आउटर जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड में होंगे, दैट टोटल एनर्जी विल बी समेशन ओवर K EK, इजंट इट? भाई मुझे हर एक स्टेट के लिए देखना है कि सभी स्टेट पे सम करना है, और कहां तक जाना है? अप टू EF या अप टू KF बोलना चाहिए हमें एक्चुअली. कहां तक जाएंगे हम? फेर्मी लेवल तक, 0 केल्विन पे. दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी. और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू EF, है ना, E इंटू DE, ऐसे भी कर सकते हो. दिस विल गिव यू द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लाइंग इन कंडक्शन बैंड या कॉन्टिन्यूअस बैंड. जो हमारे क्वाजी कॉन्टिन्यूअस बैंड्स होंगे उनकी एनर्जी इस तरह से आएगी हमारे पास. ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैलकुलेशन करते हैं वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है K पॉइंट्स का, कि कितने K पॉइंट्स मुझे लेने हैं. मान लीजिए
मुझे ये नहीं पता कि मेरा क्रिस्टल जो है कितना लंबा है, आइडियली हम इनफाइनाइट साइज का लेंगे, पर मैं मान लो बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो वहां पे अगर हम बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो वी आर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू सी. So how many K points we should take in the Brillouin zone for the properties to look decent corresponding to practical crystal? तो उस केस में हम क्या करते हैं, कितने K points लेने हैं? We start with some finite number of K points, उनको इंक्रीज करेंगे और उतने लेंगे जहां पे मेरी टोटल एनर्जी जो आती है, it is no more dependent on number of K points which I am taking. That's what I call convergence with respect to K points. कि भाई उतने K points लेने, क्योंकि बल्क के लिए अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मुझे infinite K points होंगे ideally, but computationally we can't afford with the infinite number of K points. Why? Because there will be so many equations which we are going to see now in the coming slide. इसलिए हम कितने K points लेंगे, ये जो points हैं Brillouin zone में, उतने जितने से कि हमारी एनर्जी कन्वर्ज हो जाएगी टोटल एनर्जी जो मैंने अभी आपको दिखाई. काम चलो आगे मूव करते हैं, धीरे धीरे और चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, तो ये भी पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा. सो अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन को देखें हम, मतलब ये पॉइंट्स वाला फंडा यही हो गया हमारा ओवर. तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है, आई थिंक इट इज ऑलरेडी नेक्स्ट स्लाइड. ये हमारा हैमिल्टोनियन है टोटल फॉर इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल. यहां पे हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की कहीं बात नहीं कर रहे हैं, means we are still ignoring that electron interaction. We are just at this stage trying to talk about interaction of electron with periodic potential. Electron interaction के लिए अलग एक theoretical approach है, उस पे अभी हम नहीं जाएंगे और वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन को ही समझ लेते हैं, ठीक है. So in this case, this is your kinetic energy term, this is the potential energy ux. But अभी ये ux क्या है, क्योंकि ये periodic potential है, so we have to write down this, we are writing this down in the form of Fourier series. ये भी हमें पता ही है कैसे होनी चाहिए थी, है ना. और वेव फंक्शन ये अननोन है, अभी हमें पता नहीं वेव फंक्शन क्या होगा, है ना. We don't know what will be the solution for this Schrodinger equation, but yes, बॉर्न कर्मन बाउंड्री कंडीशन से हमें यह पता है कि वेव फंक्शन कुछ इस तरह का होना चाहिए. इट्स मैथमेटिकल शेप शुड बी लाइक दिस. फाइन. नाउ इफ वी पुट दिस मैथमेटिकल शेप विदाउट इवन, वी डोंट नो व्हाट आर दी CKs, बट चलिए हमने कोई अननोन कोएफिशिएंट्स बोला इनको हैं, तो इफ वी यूज दिस फॉर्म एंड देन ट्राई टू इवेलुएट द काइनेटिक एनर्जी पार्ट, ये वाला, ठीक है. अब हम ये पूरा हैमिल्टोनियन सॉल्व करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग दिस वेव फंक्शन एंड देन ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस. तो उसके लिए पहले हमने काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट पे फोकस किया एंड देन वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट इज गोइंग टू रिजल्ट आउट ऑफ इट. तो इस केस में ये हमारा दिस वन व्हाट यू कॉल मोमेंटम ऑपरेटर, यू नो, P square looks like this. Quantum mechanics हमने पढ़ी है, so I'm not getting into much details of it. And then if we put the value of psi x, this will be nothing but the same thing like here, minus h cross square over 2m, वही Schrodinger equation जो होती है हमारी. And psi x की value जब हम put करेंगे, तो this will be resulting into this kind of summation here. You know, psi x कहां गया, ये वाला है देखो, है ना. तो ck का x के साथ कोई डिपेंडेंस नहीं है, बिकॉज c इज फंक्शन ऑफ k ओनली. ये हमने देख लिया. फोरियर सीरीज है तो k पे डिपेंड करेगी, रियल स्पेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई ck इज टेकन एज ए कांस्टेंट व्हाइल वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव. e रेज़ टू द पावर आयोटा kx का डेरिवेटिव दो बार लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, जो कि इस माइनस को कैंसिल कर दे रहा है. यू कैन सी नेक्स्ट वाली टर्म में माइनस नहीं है, ठीक है. एंड साथ में k स्क्वायर आएगा. आई एम श्योर यू ऑल कैन डू दिस सिंपल डेरिवेटिव. तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है उसका डेरिवेटिव लेके श्रोडिंगर इक्वेशन में ये आपको मिलेगा फर्स्ट पार्ट.
When we look at the second part, means अब हम निकालना चाह रहे हैं ux into psi x, पोटेंशियल एनर्जी पार्ट, राइट? सो ux into psi x क्या आ जाएगा? ux अपने आप में ये है पीरियोडिक पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा उस केस में, एंड psi x की वैल्यू यहां पुट कर दी. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. क्लियर? वेरी सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट, बट इफ स्टिल इसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो पूछ सकते हो. कोई किसी को कंफ्यूजन है? ये तो क्लियर कट है वैसे, बट स्टिल एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, वेरी गुड. तो आगे चलते हैं. अगर हम एक सेकेंड, बिकॉज इफ थिंग्स विल अपीयर all together there will be problem. Just a moment, give me 1 minute for that. Yeah, so moving to the next slide. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सिर्फ, तो पूरी वेव इक्वेशन जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म वही जो लास्ट स्लाइड पे थी, आप अपने उससे एक बारी नजर मार सकते हो. ओ सॉरी, ये देखिए, दिस इज योर फर्स्ट टर्म. वेयर इज द कर्सर? इट इज रियली टाइनी डॉट, bad to hard to visualize. Okay, so this is the first term and this is the second term. इन दोनों को समी किया है हमने, और इक्वल टू e इंटू साई एक्स की भी जो फोरियर सीरीज वाली फॉर्म है, ये वाली, ये हमने लिख दी वहां पे, एंड देन वी ऑब्टेन दिस इक्वेशन. और यहाँ पे e रेस टू द पावर आयोटा k प्लस g आ गया हमारे पास. आप देख सकते हो फिर से, दिस विल बी just a moment. Okay, just a moment, give me a minute to hold.
Okay, sorry for the interruption. Actually, had got some official work. Fine, let's move ahead. तो हम क्या कर रहे थे? We were talking about substituting these values, and then that was the equation which we were getting here. ठीक है? हाँ, k plus g की बात कर रहे थे, तो ये k plus g कहाँ से आया? Yes, यहाँ पे आप देखेंगे, so e raised to the power iota kx है, e raised to the power iota gx है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो e raised to the power iota k plus g into x आ जाएगा, ठीक है? बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड हियर. Each Fourier component must have same coefficient on both sides of this equation. Yes, है ना? Means for this equation to be satisfied, दोनों तरफ जो आपके e raised to the power iota kx वाले components हैं, वो same होने चाहिए. Correct? And for that thing to happen, corresponding coefficients should be same. Means उसको अगर हम सेम रखने की कोशिश करते हैं, then we come across this equation what we call the central equation. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में. जहां भी आप बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन करते हैं, you are actually solving central equation for periodic potentials in one or the other way. ठीक है? सेंट्रल इक्वेशन सॉल्व हो रही होती है वहां पे. कि अभी आप यहां बोलोगे अच्छा ये सी के माइनस जी कहां से आ गया, है ना? somebody may ask, ऊपर तो k प्लस जी था, क्या रीअरेंजमेंट करा? अब आप देखो, आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा यहाँ पे. e raised to the power iota kx बनाना पड़ेगा पहले. तो e raised to the power iota kx कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है? यहां से भी और यहां से भी. e raised to the power iota kx अगर आप कॉमन लेंगे तो e raised to the power gx बचेगा यहाँ पे, ठीक है? e raised to the power iota gx बचेगा यहाँ पे. बट कोफिशिएंट कौन सा है? ck की बात कर रहे हैं तो ओके, जस्ट अ मोमेंट. खैर, लैम्डा के जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन हुई है, और ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे ऐसा दिखाया नहीं है. सर इसमें डायरेक्ट हेलो, हाँ बोलो. सर इसमें डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन में k को अगर मैं k माइनस जी पुट कर देता हूँ. हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं. जस्ट ए मोमेंट. k को माइनस जी सर, k माइनस जी, k माइनस जी पुट कर देता हूँ यहाँ पे. सेकंड में तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे सर, e की पावर आयोटा kx आ जाएगा. हाँ ओके, एक मिनट. हाँ, जस्ट अ मोमेंट. सेकेंड इक्वेशन में k की जगह पे k माइनस जी अगर पुट कर देते हैं हम, तो हमारे कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, e रेज टू द पावर आयोटा kx. तो उससे क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, एंड देन वी कैन रीअरेंज दोस टर्म्स टू ऑब्टेन दिस. मतलब अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है? थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर करना मैथमेटिक्स. मतलब संदीप स्पॉटेड इट करेक्टली, बट अदर्स मे नॉट हैव. सो आई recommend a homework to all the PG students. You must do it. करके देखना इसको कैसे रीअरेंज करके ये आती है आपके पास, ठीक है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लैम्डा के क्या है हमारा? h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m. ये है हमारा लैम्डा के. माइनस e मतलब इट इज समथिंग लाइक, अच्छा इस चीज को इधर ले गए हम लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो उस तरह से भी देख सकते हो इसको, है ना? लैम्डा के माइनस e इंटू सी के दोनों में है. समीशन ओवर के रखना है आपको, ठीक है? मींस यू हैव टू टेक समीशन ओवर के कॉमन थ्रू आउट, और उसके बाद अंदर जो बच रहा है उसके साथ ही रेज टू द पावर आयोटा के एक्स ये आएगा इक्वल टू 0. तो अंदर जो बचेगा दैट इज नथिंग बट दिस व्हाट वी कॉल द सेंट्रल इक्वेशन, क्योंकि e रेज टू द पावर आयोटा के एक्स कांट बी 0 for all values of x. Therefore, the coefficient must be 0. ऐसे भी बोल सकते हो आप. So that is why this is equal to this thing. Is this clear? Central equation हो जाएगा, कर पाओगे? या किसी को कुछ और further expansion चाहिए मेरे end पे, तो मैं try कर सकता हूँ, help कर सकता हूँ. या हो जाएगा तो I will move forward, move further.
या एक काम करो, यू गो होम एंड डू इट एज ए होमवर्क। किसी के जो भी डाउट्स रहेंगे यू कैन कम बैक एंड आस्क मी, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास के लिए भी मैंने बोला था कि कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं आप वापस आके। कुछ थे आपके, कुछ सेकंड यूनिट और ये जो 7th यूनिट को कोरिलेट करने में डाउट्स थे किसी के? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 2 यूनिट्स? आप लोग पढ़े थे घर जाके? आई होप आई रिमेम्बर इट करेक्ट। मैंने कुछ बोला था ना कल? यस किसी के कोई कंफ्यूजन्स थे क्या, डाउट्स थे? यस सर, एक डाउट है बोलो बोलो। सर। जैसे हमने ब्लोच थ्योरम यहाँ डिफाइन किए, तो उसमें हमने डिफाइन किया कि साई के को हम ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर और यू के आर लिख देते हैं। तो क्या ये यूनिक है? क्या ये यूनिक है, मतलब जो थ्योरम हमारी कि किसी भी पर्टिकुलर के लिए मतलब हमारे पास वही वैल्यू आएगी, या फिर कोई अलग अगर के की वैल्यू हम लेंगे तो उसके लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगी? ये थ्योरम किसी भी के लिए सेटिस्फाई होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग यूके डिफर कर जाएगा, यूके अलग होगा बट कोरस्पॉन्डिंग यूके विल सेटिस्फाई दैट पीरियोडिसिटी कंडीशन। ये थ्योरम यूनिवर्सल है, मतलब किसी भी पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए ब्लॉक थ्योरम मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये मैंडेटरी है। अगर मैं कोई भी के डैश लेता हूँ तो उसको मैं अगर लिखना चाहता हूँ तो के डैश इज इक्वल टू के प्लस जी। ना 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 ना, के प्लस जी नहीं, के की वैल्यू। अब देखो, एक्चुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, उसकी तरफ ही जा रहे हैं जो आप बोल रहे हो। ये पर्टिकुलर के मैंने लिया, मान लो ये जो इस फिगर में इसने कुछ और भी बोलने की कोशिश की है जो मैंने अभी स्किप मारा है। ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के ली, मान लो एक रेड एरो देख रहे होंगे आप डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो के मैंने लिया, ये एक पर्टिकुलर स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की इन फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। उस पर्टिकुलर स्टेट में जो वेव फंक्शन होगा psi k of x, that will be uk, there will be corresponding k कोई into e raised to the power iota kx। अगर मैं किसी दूसरी स्टेट में जाता हूं k डैश में, psi k डैश, और मैं k डैश को क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की ही कोई दूसरी स्टेट है, मान लीजिए ये, ठीक है। तो उस स्टेट में यदि जाता हूं तो वहां k डैश, उसका k डैश uk डैश भी डिफरेंट होगा, उसका g से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जी से क्या लेना देना है वो हम आ रहे हैं अभी कमिंग पोर्शन ऑफ द लेक्चर में। ओके सर, समझ आया? यस सर। तो डोंट कंफ्यूज द टू। एक पर्टिकुलर के लिए वो स्पेसिफिक फॉर्म होगा उसका, और हर के लिए ये सेटिस्फाई होगा। तो ये सेंट्रल इक्वेशन अभी हमारे पास आ गई। अप टू दिस क्लियर? हाँ, तो अब ब्लॉक थ्योरम देखते हैं इस उसके हिसाब से, ठीक है। तो वेव फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, psi k of x should be something like this। आप बोलेंगे कि अच्छा ये कहां से आया, या आप देख पा रहे हैं कि ये कहां से आया? वेव फंक्शन जो होता है psi k of x जो है, okay, once we determine c's from 27, which is our just a moment, central equation, the wave function 25 is given as, अच्छा यहां से हमने ck's को डिटरमिन किया है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ck निकालता हूं, इधर आ जाते हैं, हाँ, यहां से मैं ck निकालता हूं अगर, हाँ, ck will be actually related to ck minus g's, इनकी टर्म्स में आएगा ना ये कुछ। If I try to relate this, this will come something in terms of these. Is this okay? हाँ, yes no, कोई नई बात बन रही है? हाँ, ओके सर। संदीप? नो सर, नो। नहीं? नहीं, क्या प्रॉब्लम लग रहा है? मतलब ये जो के माइनस जी यहाँ लिया है इसमें, सी के माइनस जी, तो इधर से अगर हम सी के की वैल्यू भी निकालते हैं सर तो डायरेक्ट पुट करेंगे उसके अंदर। एक मिनट रुको जरा, हाँ नहीं, आई हैव जस्ट अ मिनट, हाँ, कुछ एक शॉर्टकट मार के मिस हो गया है यहाँ पे, एक मिनट रुको।
The set appears unpleasant formidable equation, ठीक है, ये तो बहुत complicated है, मान लिया. Practical advantages over this. Once we determine C's from 27, which is our this equation, ठीक है. Okay. CK summation over G, CK minus G. E raised to the power iota k minus g. एक सेकेंड है. Psi kx is equal to ck. Okay. ठीक है, समझ आया. What he's talking is about the wave function at a particular k. ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट k के लिए ये वेव फंक्शन लिख रहा है. So that should look like this. एक सेकेंड, I had done it long back. मुझे 1 मिनट रिकॉल करने दो जरा, ठीक है. ck minus g into I e raised to the power iota k minus g into x. अरे यार, स्ट्रेंज. Psi k, एक सेकेंड. Let me go back again to the previous one. Where what was our? Okay. Got it. ये जो psi k है ना, this is not. There is something important here. ध्यान रखने वाली चीज है ये. If I am not again mistaken. Okay. एक हमने कहा psi of x is equal to summation over k, ठीक है. C k e raised to the power iota k into x, जहां पे k हमारा था what you call 2n pi by l, ठीक है. बट ये जो वेव फंक्शन है, दिस इज नॉट टोटल psi ऑफ x, है ना. psi k, psi corresponding to a particular value of k of x ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. ओके. Psi k, that is fine. This form is very important and need an attention, specific attention. The set appears to be in this an infinite number of ck minus g for a particular k. Yes, they will be related. Once we determine the c's from 27, the wave function 25. Okay, wave function 25 means, एक second. Yeah, fine. Yeah, same here, that is fine. Okay, there was a mistake at my end. This is given by this. K की बजाय summation over G कर दिया इसमें, ठीक है. Just a second. Where is 20? Yeah. K. तो K की जगह पे summation over K minus G. Let me look at this. Okay, K is replaced with K minus G and e raised to the power iota K minus G. And now the summation is running over G. हाँ, ठीक है. हाँ, Sandeep, let us come to this. It was a very valid point raised by Sandeep. Psi k of x क्या होना चाहिए? Summation over k ck e raised to the power iota kx. ये आपकी इक्वेशन 25 थी. Anyway, I mean उसके ऊपर बात नहीं करते. ये होना चाहिए था.
मीन्स वी शुड टेक समीशन ओवर ऑल द के पॉइंट्स। अब इस फिगर पे चलते हैं, यहां पे आपको सभी के पॉइंट्स पे समीशन लेना पड़ेगा, ठीक है, वेव फंक्शन को निकालने के लिए। बट फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के पॉइंट, से दिस वन, ये वाला जो है, this Fourier coefficient doesn't have any relation with other Fourier coefficients of wave function sitting in the first Brillouin zone at least. We can say it that way, yes. Means it will have a relation, but एक particular k के लिए जब हम लिख रहे हैं उसको, तो मुझे ये टर्म लेनी पड़ेगी और अगली ब्रिलियन जोन में ये टर्म लेनी पड़ेगी। अगर मैं सपोज सेकंड डॉट ले रहा हूं, नेक्स्ट ब्रिलियन जोन की ये टर्म लेनी पड़ेगी, ये टर्म लेनी पड़ेंगी, और ये जो टर्म्स हैं ये डिपेंडेंट हैं आपस में। दैट्स व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये जो यहां पे इसने दिखाया है, सपोज वी आर टेकिंग सम आर्बिट्रेरी के नॉट, देन के नॉट प्लस 2 पाई बाई ए, के नॉट माइनस 2 पाई बाई ए, के नॉट प्लस 4 पाई बाई ए, ये जो फोरियर कॉफिशिएंट्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट ही हैज डन हियर कि भाई ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द समीशन ओवर के, इस समीशन में ये जो मैं समीशन यहां दिखा रहा हूं और इस समीशन को, ये जो यहां पे है हमारा, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, यहां पे समीशन इज रनिंग ओवर जी, द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स, एंड यहां पे समीशन इज रनिंग ओवर के। इसका मतलब क्या हुआ कि के जब मैंने फिक्स कर दिया, तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में जो एक मेरा पॉइंट है, एक पर्टिकुलर स्टेट को लेके एक कांस्टेंट, एक कोएफिशिएंट आएगा सी के, और मैं साई के की बात कर रहा हूं ऐसे भी, वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर स्टेट के, तो उसमें एक कोएफिशिएंट सी के आएगा और बाकी कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, सी के प्लस जी, सी के माइनस जी। तो जी क्या होगा, और जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई बाई ए, वो जो हमने यहां पे देखा है, ठीक है। के नॉट, के की बजाय यहां के नॉट बोला है उसने, इट्स वन एंड सेम थिंग, के नॉट प्लस 2 पाई बाई ए, 4 पाई बाई ए एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं वेव फंक्शन को कोरस्पॉन्डिंग टू ए स्टेट के इस तरह से भी लिख सकता हूं, एज ए समीशन ओवर जी ऑल द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो यहां पे मैंने क्या किया, जो साई के एक्स था, विच इज इक्वल टू समीशन ओवर के सी के ई रेस टू द पावर आयोटा के एक्स, सॉरी, उसको मैंने क्या कहा कि नहीं, एक काम करता हूं, के की बजाय मैं के प्लस जी या के माइनस जी कुछ भी ले सकता था मैं, तो इस वी हैव ऑप्टेड फॉर के माइनस जी। So by let us run a summation over G and replace each K with K minus G e raised to the power iota K minus G into X, same चीज, ठीक है। And now run the summation over G, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट K के लिए यहां पे जो आ रही है, और सारे कौन से कोएफिशिएंट्स आएंगे, these coefficients will be related to each other। तो इस तरह से हमने ये लिखा। फिर मैं, वो जो संदीप आप बात कर रहे थे के डैश, इफ वी गो टू सम अदर वैल्यू, मुझे इसको जरा क्लियर करने दो यहां पे, एंड लेट अस कम हियर अगेन नाउ। इफ वी गो टू सम स्टेट से के डैश, ये मान लीजिए के थी, ये वाली स्टेट के थी हमारी, सपोज आई वेंट फॉर सम अदर स्टेट के डैश इन द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, तो मेरी क्या आ जाएगी, सारे कोएफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, के डैश प्लस जी, के डैश प्लस 2g। तो मुझे कौन से टर्म्स लेनी पड़ेंगी, 1 2 3 है ये यहां से, तो ये वाला कोएफिशिएंट होगा मेरा के डैश प्लस जी, के डैश प्लस 2g, सिमिलरली के डैश माइनस जी एंड सो ऑन। तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई कौन सी स्टेट के लिए, कौन से ऑर्बिटल के लिए मैं पीरियोडिक पोटेंशियल में वेव फंक्शन लिख रहा हूं, वो यूनिक होगा। वहां पे हमने ब्लॉक थ्योरम बड़ी ही क्रूड से तरीके से डिफाइन करी थी, वही मैं बोल रहा था, जहां उस टाइम भी पॉइंट आउट किया था
Now this is a more rigorous, more detailed description of wave function of the electron for a periodic potential in a particular state K. मैंने कहा था कि K जो है ये ऑर्बिटल इंडेक्स है या व्हाट यू कैन कॉल दी क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में होगा, उसका वेव फंक्शन कैसा होगा, वो यहां से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं, एक कोई आएगा, बाकी अदर ब्रिलियंट जोन्स के आएंगे। अब क्वेश्चन है CK और CK डैश, विल द टू हैव एनी रिलेशन टू ईच अदर? यही क्वेश्चन था ना संदीप, कि भाई CK और CK डैश का क्या लेना होगा, लेना देना है एक दूसरे से। दैट वी विल बी कमिंग शॉर्टली। इसके ऊपर मूव करते हैं। पहले तो ये चीज ध्यान में रखो, दिमाग में डालो कि भाई CK और CK के लिए क्या क्या आएगा, कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, और CK डैश के लिए कौन कौन सी टर्म्स आएंगी। मतलब एक फर्स्ट ब्रिलियंट जोन से एक ही टर्म आएगी CK। तो इन प्रिंसिपल जितनी स्टेट्स होंगी उतने ये कोफिशिएंट्स होंगे मेरे, है ना। तो मेरे पास n अगर यूनिट सेल्स थी तो n पॉइंट्स थे, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, k कैन गो फ्रॉम 1 to n, ठीक है। n वैल्यूज हो सकती हैं, या 0 to n - 1 व्हाटएवर। तो CK ये मेरे अननोन कोफिशिएंट्स इतने होंगे। अब सवाल आता है कि वेव फंक्शन के लिए अदर्स भी तो चाहिए होंगे। मतलब दिस इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज दिस समिशन वाज रनिंग ओवर मेनी यूनिट सेल्स। जब आपने ये वेव फंक्शन लिखा था, कहां गया वेव फंक्शन, हाँ इसी पे ही बता देता हूं। जब आपने ये जो बॉर्न करमैन बाउंड्री कंडीशन से यहां पे है, हाँ ये जो वेव फंक्शन लिखा था दिस वन, तो देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन कि भाई सबमिशन जो है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में ही होना है, या ये जो K है ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के लिए रिस्ट्रिक्टेड होगा, नहीं। इट कैन हैव इनफाइनाइट मेनी टर्म्स, बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं। तो हाँ हमने कहा ठीक है, पर जब मैं एक पर्टिकुलर स्टेट साई K के लिए वेव फंक्शन लिख रहा हूं, तो मुझे क्या होगा, एक टर्म K वाली आएगी CK, और अदर्स नहीं आएंगे इस केस में। साई K में ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं साई K लिख रहा हूं, wave function corresponding to a state of electron described by a value k, उसमें मेरा CK dash other coefficients from first Brillouin zones won't appear here, only the coefficients from other Brillouin zones, और वो भी कोई specific one which are related to k with g, either k plus g या k minus g, where g is 2n pi by a, यही आएंगे, सभी नहीं आएंगे आर्बिट्रेरीली। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे सेंट्रल इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में। थोड़ा आगे चलते हैं और ध्यान थोड़ा जब और इवेलुएट करेंगे हम चीजों को, तो हमें और क्लैरिटी इसमें आएगी। अब पहले ब्लॉक थ्योरम को देख लेते हैं, संदीप जो बात कह रहे थे अभी, ठीक है। तो यहां पर ये चीज क्लियर हुई आपको थोड़ी, या फिर भी आई मीन इज देयर सम क्वेश्चन? अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं maybe in next class I can come with more proper answer to this, या फिर यहां तक ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि वेव फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, या इसमें कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया तो आप मुझे क्वेश्चन दे दीजिए, देन आई विल कम विद आंसर इन द नेक्स्ट क्लास में भी, अगर अभी नहीं है मेरे पास तो। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, या ये जो ब्लॉक थ्योरम में मैंने वेव फंक्शन लिखा? संदीप? सर मैं इसको ट्राई करूंगा ना घर जाके एक बार। अच्छा चलो करो, और कल मुझे बताना फिर, आई मीन सीरियसली आप मुझे मतलब सभी ट्राई करना, एंड देन लेट मी नो इफ देयर आर फर्दर कंफ्यूजन्स। क्योंकि इसमें सेंट्रल इक्वेशन में सर जी की नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। क्यों, कहाँ लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल शुरू में हमने कंसीडर किया था, तो उसके लिए जी की नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं थी। नहीं, ये देखो यहाँ पे पोटेंशियल पे चलो वापस, एक जगह पे हमने स्पेशल केस ये किया था, कहाँ पे किया था ये, जब हम कॉस फंक्शन लेंगे तो नहीं होती, पर e रेज़ टू द पावर x जब ले रहे हैं तो होगी, पॉजिटिव नेगेटिव सब होंगे। समझ आई बात? आर यू गेटिंग दिस? मैंने ये फॉर्म ली थी ना, ये फॉर्म लेंगे तो यस होगी, पर अगर ये फॉर्म लेंगे तो g इज पॉजिटिव ओनली। समझ आई बात?
तो इस केस में जी की नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज होंगी, है ना? क्लियर या नहीं? क्लियर। हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे इस केस में, दैट इज फाइन। चलो, और कुछ भी होगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे नेक्स्ट क्लास में, बट इसको ध्यान से समझें, मतलब इट शुड नॉट रिमेन मिस्ट्री टू यू, और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब ये थोड़ा सबमिशन वमिशन में ध्यान से हम करेंगे तो मतलब वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक्स। मैथमेटिक्स को देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ये कैसे आ रहा है। लॉजिक समझ आ जाएंगे तो यू विल बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इसलिए इसने सबमिशन ओवर k माइनस जी से रिप्लेस कर दिया, और ये k प्लस जी भी ले लिया होता तो इक्वली वेल होता, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि g पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले लें तो चलेगा। अच्छा, अब वेव फंक्शन हम ब्लॉक थ्योरम को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, मतलब अब uk की बात हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे। इस फॉर्म को अगर हम लेते हैं, इस फॉर्म को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ यू कैन सी दिस, मैंने यहां पे कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ वैसे ही रखा, सबमिशन, और e रेज टू द पावर आयोटा के एक्स कॉमन लेने के लिए e रेज टू द पावर आयोटा के एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, e रेज टू द पावर माइनस आयोटा जी एक्स ही बचा यहाँ पे, है ना, और कुछ नहीं बचा। तो इस फॉर्म को अगर मैं वो ब्लॉक की शुरू वाली इनिशियल फॉर्म में से देखूं, तो ये जो फंक्शन है मेरा, दिस इज नथिंग बट आई कैन से दिस इज यू के ऑफ एक्स एंड दिस इज आवर e रेज टू द पावर आयोटा के एक्स। तो जो u के x क्या है, उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, जो मेरा अननोन फंक्शन था, डिटेल में वो कहां से आएगा, वो आएगा फोरियर कोएफिशिएंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द वेव फंक्शन, है ना? तो वहां से मेरा ब्लॉक फंक्शन एग्जैक्टली कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। अब सवाल है कि अच्छा ये सीकेज कहां से आएंगे, ये अभी हमें नहीं पता ना, इसके बारे में भी बात करेंगे, बट हाँ यूके की एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होगी, दिस शुड बी क्लियर टू यू फ्रॉम दिस नोटेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी यूके ऑफ एक्स, वही जो ऊपर मैं लिखा था ये यहां पे दिखा दिया, ठीक है? अच्छा, एक और होमवर्क कि अच्छा यूके एक्स पीरियोडिक होना चाहिए था ना, इट शुड हैव सेम पीरियोडिसिटी एज दैट ऑफ क्रिस्टल पीरियोडिसिटी। चलो देख लेते हैं, यही वर्कअप किया है इसने। सो मींस यूके ऑफ एक्स प्लस टी, टी यहां पे है ए बोल दो, या टी ट्रांसलेशन वेक्टर इन जनरल इज n इंटू ए, वन डायमेंशनल केस के लिए। थ्री डायमेंशनल केस के लिए दिस विल बी n1 a प्लस n2 b प्लस n3 c एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो लेट मी नॉट गेट इनटू दैट। तो ये देखते हैं कि क्या ये जो फंक्शन है uk, क्या ये पीरियोडिक है, डज इट हैव सेम पीरियोडिसिटी एज दैट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, या पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी। तो पुट करें अगर हम वैल्यूज, तो सी के माइनस जी तो वैसे ही रहेगा, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, x प्लस टी, और इसमें अगर आप देखेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस आयोटा g इंटू टी हम ले लेते हैं कॉमन, एक टर्म ये आएगी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x, और एक टर्म g इंटू एक्स एंड g इंटू टी, और g इंटू एक्स वाली टर्म एज सच हमने रख दी अंदर, कुछ भी नहीं किया, ये टर्म ऐसे ही रख दी, और ये टर्म क्योंकि इसमें k अपीयर नहीं कर रहा है, इट इज नॉट कंटेनिंग एनी k, एंड समेशन इज एक्चुअली ओवर, सॉरी इट इज नॉट कंटेनिंग, g कंटेन कर रही है, दैट इज फाइन, बिकॉज दिस समेशन इज ओवर g, ये देखो पिछली स्लाइड में है ना, समेशन इज ओवर g, फिर आप बोलोगे तो फिर भी ये हमने ब्रैकेट से बाहर क्यों ले ली, ये इसलिए ले ली क्योंकि g इंटू टी जो होता है दिस इज ए कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा था, रियल स्पेस वेक्टर और रेसिप्रोकल स्पेस वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो क्या आता है, ये 2 पाई इंटू एन, कुछ ऐसा आता था ना ये, इंटू डेल्टा आई जे, इजंट इट, 2n पाई इंटू डेल्टा आई जे, कुछ ऐसा, इज इट क्लियर? 2 पाई इंटू डेल्टा आई जे आता था, n भी नहीं आता था, n नहीं होगा, सॉरी, पढ़ा था ना हमने, एक 1D के केस में देख लेते हैं, चलो सिंपल, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज 2 पाई बाई a, यही होता है ना, और रियल स्पेस लैटिस वेक्टर इज n इंटू a, सो जब आप g इंटू टी करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई a इंटू n इंटू a, n आएगा शायद, सो दिस विल बी 2 पाई इंटू n,
तो ये एक n is some integer, so it is 2, I mean integral multiple of 2 pi, ठीक है। और e raised to the power आयोटा इंटू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, शायद वर्कअप नहीं किया इसमें, मैंने स्टेप्स नहीं डाले, पर अभी कर लेते हैं। e रेस टू द पावर ये क्या आ जाएगा, मतलब माइनस आयोटा इंटू 2n पाई, ये इसके बराबर आएगा फाइनली। किटल सेकंड चैप्टर में लिखा है रियल स्पेस और लेटिस रेसिप्रोकल स्पेस के लेटिस वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है ना। आई थिंक वहां पे कैसे लिखा था, नोटेशंस क्या ले रहे थे हम, a स्टार a i स्टार ए आई ऐसे कुछ था, आई मीन आई एम नॉट गेटिंग इट। वो 2 पाई, ये तो 2n पाई होता है, ये तो क्लियर हो गया यहीं पे, सो यू कैन गो बैक टू द नोटेशन। खैर इसकी बात करते हैं। e रेज टू द पावर माइनस आयोटा g इंटू टी किसके बराबर हो गया, e रेज टू पावर माइनस आयोटा 2n पाई, और ये किसके बराबर होगा, cos ऑफ 2n पाई माइनस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई। ये दूसरे वाली टर्म जीरो होगी इस केस में, आई होप यू नो, साइन ऑफ 2n पाई विल बी जीरो, और फर्स्ट वाली टर्म विल बी 1। तो ये जो टर्म है आपकी ये 1 है, और ये इसलिए क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाई वी कैन से uk ऑफ x प्लस टी। वो शायद संदीप का दूसरा क्वेश्चन जो था, uk ऑफ x प्लस टी इज uk ऑफ x, एंड इट विल बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। सो किसी भी स्टेट के लिए आप uk लिखोगे वो पीरियोडिक होगा, एंड इट विल हैव सेम पीरियोडिसिटी एज दैट ऑफ the lattice periodicity. Is this clear? Yes sir. अच्छा, तो अभी आपका क्लास है इसके बाद क्या कोई? हाँ? No sir. Does anyone have a class? सर S2 वालों की हो सकती है क्लासेस। अच्छा चलो, जिसकी भी हैं तो ठीक है। इसको आप फिर से, मैं बोल रहा हूं, मुझे मतलब उम्मीद है कि you have not actually lost into this mathematics. It's very simple, Fourier series ही है, but थोड़ा सा crystallographic point of view से उसको हमने देखा। If you go home and then read this yourself from Kittel, try to do these steps, whatever is missing here. In case you find any confusion, any conceptual difficulty, you come back and ask question. I will definitely help you. And up to this point आप खुद पढ़ के आइए एक बार फिर से, और कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है आप मुझसे पूछिए। कल वाली कक्षा में ये थोड़ा बहुत चलो फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे हम, और फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारी सेंट्रल इक्वेशन है, इसके जो ये सीकेज हैं, ये हम सॉल्व कैसे करते हैं। सीकेज आ जाएंगे तो हमारा वेव फंक्शन आ गया, टोटल वेव फंक्शन आ गया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि पीरियोडिक पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के एनर्जी डिस्पर्शन पे, है ना। तो कल हम ये देखेंगे कि भाई ये जो सेंट्रल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम सीकेज निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ टुमारो, बट बिफोर दैट यू मस्ट बी क्लियर अप टू दिस पॉइंट। यहां तक आपको हर चीज क्लियर हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है। वेल, साइन कर दिया आप लोगों ने अटेंडेंस, किसी की छूट गई हो तो फटाफट कर लीजिए, और तब तक किसी का कोई सवाल है तो फटाफट पूछ भी सकते हो आप लोग। अटेंडेंस डन बाय एवरीवन, क्विकली साइन यस दोज हु हैव नॉट। और बहुत सारे लोग बहुत लेट तक आते रहते हैं, आज मैंने कुछ लोगों को अलाउ भी कर दिया, बट कल से मत आना इतने लेट, आप 15-20 मिनट लेट, 25 मिनट लेट आ रहे हो, तो दैट इज टू मच ऑफ इट। आई मीन 4-5 मिनट आई कैन एक्सपेक्ट, ठीक है मान लिया, बट यू आर कमिंग वेरी लेट, सो बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। Okay, fine then, that's all for today. Have a nice time.